Good morning, students. Today I am here with the continuation of the chapter Acid, Bases and Salts. Today I am going to teach you number one topic is chlor alkali process. Now why we are studying about chlor alkali process? Because during this reaction, whatever the byproducts or the products we will get, that has lots of uses, immense uses in our day-to-day life activity. So let's start chlor alkali process. Now you may think, आप सोच सकते हैं कि क्यों इसे क्लोर एल्काली प्रोसेस कहा जाता है, why we call it क्लोर एल्काली प्रोसेस. तो very easy, we will take NaCl salt with water and this combination is called brine. What we call it? Brine. और इस brine को जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, when we pass electricity then what will happen when we pass electricity, then what will happen, we will find that it will produce NaOH plus H2 plus Cl2. In this case we will make it balance like this, and when sodium chloride, that is water and NaCl salt, sodium chloride reacts or form a solution, we call it brine. So it is an aqueous solution, and this is liquid water in which we have dissolved this, and we call it brine. And when we pass electricity to do the electrolysis, then we will get sodium hydroxide, which is an alkali. This is chlorine gas, and this is hydrogen gas. Now during this reaction we observe that we obtain chlorine as well as alkali as a sodium hydroxide, and that's why students we call it chlor alkali process. First of all, second चीज हम ये देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी यूजेस क्या है. एग्जाम में पूछते हैं CBSE एग्जाम्स में कि इसकी यूजेस क्या है. तो NaOH का यूज है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सोप्स, डिटर्जेंट, then to clean metal surface, metal sheets and many more. Whereas H2 का यूज़ क्या है? H2 hydrogen gas is widely used as a rocket fuel. We cannot use this fuel for domestic purpose because it has highest calorific value. Am I clear? ये बहुत ज़बरदस्त ढंग से जलता है, ये धमाके के साथ जलता है, it explode. That's why we use in rockets. So they are used as a fuel in rocket. They are used in fertilizer to prepare ammonia, fertilizers, that is fertilizers, और हम इसका इस्तेमाल करते हैं मार्जरीन बनाने के लिए. इट्स लाइक बटर. ओके, सो ये सब चीज़ों के लिए हम हाइड्रोजन गैस यूज़ करते हैं, और क्लोरीन गैस हम यूज़ करते हैं क्या? वाटर डिसइंफेक्टेंट के लिए. वाटर डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज़ करते हैं टू किल द जर्म्स इन द स्विमिंग पूल. और कहाँ यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं इसको टू प्रिपेयर PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड. इसे हम यूज़ करते हैं टू किल द जर्म्स. Am I clear? So these are the specific uses of sodium hydroxide, hydrogen and chlorine gas. So I hope you understood what are the uses of this, and that's why they are very, very important. Now From this, whatever the compound we are getting, they are further used for different purposes.
Sir, can you tell us? Yes, let's start one more topic, that is bleaching powder. अभी हम क्या पढ़ेंगे? ब्लीचिंग पाउडर. सुना ही होगा नाम ब्लीचिंग पाउडर. सो bleaching powder. Now bleaching powder is a common name of a compound which we called calcium oxychloride, and this is the formula of bleaching powder. Calcium oxychloride is the chemical name. Now how will you prepare this bleaching powder? Now when we take calcium hydroxide, that is dry form, dry slaked lime, which is called calcium hydroxide, but it should be dry, and when we treat this dry slaked lime with chlorine gas, then when we heat it, then what will happen? Then we will get calcium oxychloride plus hydrogen gas. No, then we will get water. So in this way, this compound is called bleaching powder. Bleaching powder. I hope it's clear. तो हमने ये देखा कि ब्लीचिंग पाउडर होती क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स? हम ड्राई स्लेक्ड लाइम ले लेंगे और उसमें क्लोरीन गैस डाल देंगे, एंड जब हम क्लोरीन गैस डालेंगे तो ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा? हमारे लिए ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा. तो आई होप इट्स वेरी इजी, मगर इसके यूजेस बहुत इम्पॉर्टेंट है. नंबर 1, इट इज़ यूज्ड इन कॉटन एंड textile industries. Cotton industries means cotton means textile industries, then paper industries. It is a wonderful oxidizing agent, so it is used in different chemical industries also. It is used to kill the germs in swimming pool, even to disinfect the drinking water. तो ये इसके यूजेस हैं, तो प्लीज़ आप इसके यूजेस को ज़रूर प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में इसके यूजेस पूछे जाते हैं. तो नंबर 1 यूज़ क्या है? इट इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, देन पेपर इंडस्ट्री, पेपर फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज, देन इट इज़ यूज्ड इन to kill the germs in water, and lastly it is used as a oxidizing agent in chemical industries. तो ये इसकी मेन यूजेस हैं. अगर आप यूजेस नहीं पढ़ के जाएंगे then it is very difficult for you to understand. So students, we come to know कि ब्लीचिंग पाउडर किसे कहते हैं. ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को कहते हैं. केमिकल फार्मूला है इसका CaOCl2. इसे कैसे बनाया जाता है? स्लेक्ड लाइम को, ड्राई स्लेक्ड लाइम को जब क्लोरीन गैस से ट्रीट किया जाता है, हीट किया जाता है, देन वी गॉट व्हाट? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसके साथ क्या मिलता है? साथ ही साथ मिलता है H2. तो दिस आर द कंपाउंड. इसके यूजेस क्या है? इट इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज. इसे हम यूज़ करते टू किल द जर्म्स इन वाटर, एंड इट इज़ यूज्ड वाइडली एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन डिफरेंट केमिकल इंडस्ट्रीज. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लीचिंग पाउडर. नाउ अभी हम पढ़ेंगे क्या? अभी हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा की यूजेस क्या है? बेकिंग सोडा होता क्या है? बेकिंग सोडा इज़ अ माइल्ड सॉल्ट और माइल्ड बेसिक सॉल्ट. ओके, बेसिक सॉल्ट है ये. दिस इज़ अ बेकिंग सोडा विच इज़ अ वेरी बेसिक सॉल्ट, एंड इट इज़ नॉन कोहेसिव सॉल्ट. इसकी यूजेस टू मेक क्रिस्पी पकौड़ाज. Am I clear? Crispy pakoras, it is in 2017 this question was there in CBSE paper. So why we use baking soda
while making crispy pakoras. Because baking soda, when we add to make the pakoras, we get a crispy pakoras. I hope understood. So baking soda हम क्या कहेंगे, बेकिंग सोडा में हम लेंगे NaCl प्लस H2O प्लस ammonia plus carbon dioxide gas. When we take these four compound, means when we take this one as a brine, हम इसे brine कहेंगे as we have already discussed, और उसके साथ अमोनिया लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेंगे, और उसे जब हम लोग ट्रीट करेंगे वी विल डेफिनेटली गेट अमोनियम क्लोराइड, और साथ में मिल जाएगा क्या, NaHCO3, एंड दिस इज द कंपाउंड वी आर सर्चिंग फॉर, एंड यही वो कंपाउंड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखो बेटा, इसका कॉमन नेम क्या हुआ, बेकिंग सोडा, केमिकल नेम क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कुछ लोग उसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बनाएंगे कैसे इसको, हम लेंगे NaCl के साथ हम ट्रीट करेंगे वाटर, NH3 एंड CO2। जब ये सब आपस में मिलेंगे तो बन जाएगा क्या, अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 that we required, and that's why it is called the baking soda. Now this baking soda is when we take this baking soda and when we heat this baking soda, we will get what, Na2CO3 plus H2O plus CO2, and this given information कि during heating of baking soda a gas is released called carbon dioxide, and when you use this baking soda, then obviously when we heat it, obviously this gas will produce called baking soda, and this compound sodium carbonate will be used further for making washing soda. So baking soda is used to generate carbon dioxide gas. So where we can use this particular chemical, yes, this particular chemical when we use for making breads, cakes and other things we can't eat. As I told you, it is a basic in nature, and that's why we have to treat it in some different way, and now we are using it in the form of baking powder, no more baking soda. So what is baking powder? Now baking powder is nothing but having this NaHCO3 plus tartaric acid. From where you got tartaric acid? From tomato, from tamarind, tomato oxalic acid, tamarind, इमली से हमें ये टार्टरिक एसिड मिल सकती है, और जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तब हम इसे क्या कहेंगे, बेकिंग सोडा। ना अब बेकिंग सोडा यूज़ करने से फ़ायदा क्या है, व्हेन यू यूज़ बेकिंग सोडा तब क्या होगा, NaHCO3 इस बेकिंग सोडा के साथ एसिड से जो आ रही है H पॉजिटिव, उसके साथ जब रिएक्शन होगा तो वो क्या बनाएगी, वो बनाएगी हमें देगा वो H2O प्लस CO2 प्लस सॉल्ट ऑफ सोडियम देगा। दैट मीन्स अब की बार ये एसिड और ये माइल्ड बेस आपस में रिएक्शन करेंगे, और जिस दौरान सोडियम सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और H2O बनेगा। दिस CO2 मेक्स द केक, bread, all these type of edible item very fluffy. Even if we use it in idli also to make it very soft, spongy, fluffy. और इस दौरान when we eat it, we will not feel bitter in taste, because here a neutralization reaction take place, and during that a salt and water is produced. So you when use baking powder, you make your cake and bread very soft, fluffy and tasty. But if you use baking soda instead of that, then obviously your cake, your bread will be soft, will be what is called spongy,
but it will bitter in taste. So it is advised to use what? क्या एडवाइस किया जाता है? यूज़ बेकिंग पाउडर, नॉट बेकिंग सोडा. ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि बेकिंग पाउडर का यूज़ क्या है. नाउ हम देखेंगे कि बेकिंग सोडा के बाद वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा में क्या होता है? वॉशिंग सोडा तो बच्चों वॉशिंग सोडा क्या है? वॉशिंग सोडा इज़ नथिंग बट सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O डेकाहाइड्रेट है. ठीक है, अब ये बनाते कैसे करके? हमने देखा था कि वॉशिंग सोडा से बेकिंग सोडा से हमें Na2CO3 मिला था. इसमें अगर हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को डाल दें तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगी? Na2CO3.10H2O. जानते हो बेकिंग सोडा को अगर आप खुला रख देंगे, इफ़ यू कीप द कंटेनर ओपन, जिसमें आप बॉक्स में रखते हो वॉशिंग सोडा को, उस वॉशिंग सोडा को अगर आप खुला रख दोगे तो क्या होगा? इस वॉशिंग सोडा से Na2CO3.10H2O से 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकल जाएगी और रह जाएगा. ऑल्दो दिस रिएक्शन इज़ नॉट इन योर टेक्स्ट बुक बट यू शुड नो कि ये डे टू डे लाइफ में यूज़ होती है, क्योंकि वॉशिंग सोडा में से अगर हम लोग उसको ओपन प्लेस में रख देंगे तो ऑब्वियसली धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल्स एयर में जाती रहेगी और ये नो मोर अ वॉशिंग सोडा. इट इज़ लेस इफेक्टिव. वी कैन नॉट यूज़ इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस. नाउ वॉशिंग सोडा की डिफरेंट यूजेस क्या हैं? वॉशिंग सोडा नंबर 1 यूज्ड इन सोडा ग्लास. हम जितने भी विंडो पैन्स होते हैं ना, खिड़कियों के जो कांच लगते हैं, ये सारे जब हम बनाते हैं वी यूज़ वॉशिंग सोडा. ओके. नंबर 2 इसका यूज़ है कि इट इज़ यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ एज अ in laundry, as a washing clothes and other things, and it is used for remove permanent hardness को remove करने के लिए भी यूज़ करते हैं. It is used to remove the permanent hardness of the water. ठीक है, हम इसको permanent hardness of the water को भी निकालने के लिए, hardness means salt, अगर हम उसको drinkable water बनाना है तो उस water में से salt को निकालना है. तो जब salt को निकालना है तो हम क्या करेंगे? washing soda से उसको treat करेंगे. And lastly, it is also used for making some important chemicals like borax, BORAX. ये केमिकल को बनाने के लिए भी वॉशिंग सोडा यूज़ की जाती है. नाउ आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वो है व्हाट इज़ कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस. ना प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो है क्या? ये एक कंपाउंड है कैल्शियम का, और ये इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम CaSO4, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हाफ H2O. दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. P ऑफ P शॉर्टकट में हम बोलेंगे P ऑफ P, इसका फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. अब ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाते कैसे करके हैं? हम लेते हैं जिप्सम, फॉर्मूला है CaSO4.2H2O. ये है हमारा जिप्सम. अब इस जिप्सम को अगर हम लोग हीट करेंगे 373 केल्विन, दैट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस में अगर हीट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट? कैल्शियम सल्फेट .H2 हाफ H2O. एंड दैट्स वाई स्टूडेंट्स हम इसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस. इसे हम कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस. नाउ दिस प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होती है ये हमको बहुत सारे यूजेस में काम आती है इन आवर डे टू डे लाइफ. लाइक वेन एवर to join the fractured bone, doctor use it to join the fractured bone. It is used for making different type of toys. आप देखते हो तरह तरह के खिलौने मिलते हैं बाज़ार में, तो वो मिट्टी के नहीं होते, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती हैं, वाइट कलर की होती हैं. It is used for making false ceilings and decoration at the home, as well as it is used in laboratories to seal the different glass apparatus. Okay, so this is a wonderful equation you should understand. But why it is so important? It is so important because if you keep this plaster of Paris in an open air
or if you add few drops of water in it, no more it becomes प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये और प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगी, वापस से जिप्सम बन जाएगी। दैट मीन्स ये रिएक्शन कैसे होगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O, अगर इसमें हम 1.5, इसमें हमने 1.5 H2O लिखना भूल गए, नाउ इट इज़ अ बैलेंस। ना अगर हम वही 1.5 H2O अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो वो वापस से क्या बन जाएगा, CaSO4 डॉट 2H2O। दैट मीन्स वापस से वो जिप्सम बन जाएगा। एंड दिस जिप्सम इज़ नो मोर यूज for joining the fractured bone, no more use for plaster of Paris in the what is called decoration purpose, or whatever the uses we are having for the plaster of Paris, हम जिप्सम को उनका इस्तेमाल में नहीं ला सकते। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि ये केमिकल्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। आज हमने पढ़ा क्लोरल-अल्काली प्रोसेस, आज हमने पढ़ा ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, एंड लास्टली आज हमने पढ़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड लाइक इट, एंड माई नंबर इज़ देयर। इफ़ एनी मोर फर्दर क्वारीज आर देयर, यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क। क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होती हैं जो आपके दिमाग में आ रही हैं मगर आप पूछ नहीं पा रहे हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क ऑल दिस क्वेश्चन। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय, टेक केयर।